everyone, welcome back to your own channel Study with Alka Kandwal. How are you all? I hope all of you are great and are very positive. So those who are new to the channel, let me give you a brief introduction about the channel. I am Alka Kandwal. This is an educational channel wherein we take up maths for grade 8 to 10 right now. We will be taking for 11 and 12 soon. And computer is a very important part for all the competitive exams these days. So computer is definitely a part of the educational channel wherein a separate playlist has been dedicated for this sole purpose. And the other is PGT computer science and TGT computer in various organizations like KBS, NBS, DSSB. So that is the focus. For that, we are covering the entire syllabus of grade 11 and grade 12 computer science. सो ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन. तो अगर आप चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब को क्लिक कर दीजिए और also you don't forget to click on the bell notification because as and when the video is uploaded you are just notified about it and you can take something out of that and you also keep on motivating me. So आज क्या किया जाए? आज है एक important सेशन जिसमें हम 20 to 30 abbreviation कर लेते हैं which is very important and generally it is asked in the computer examination. तो पहले जल्दी हम सेशन शुरू करते हैं and so that you can just watch the video and then you can just go and enjoy, have fun on Sunday. Yes, so let us start. So let us start with a very basic one. So number one, let us start. What do you say? Okay, so here we go. VDU. So I hope many of you know it. We have already discussed in the previous session also. This one I do remember. So Visual Display Unit. VDU stands for Visual Display Unit. Monitor को भी बोलते हैं VDU, Visual Display Unit. आगे बढ़ते हैं PDF. हम लोग बोलते हैं कि जो फाइल है PDF में भेज दो. तो PDF का फुल फॉर्म क्या है? What is the full form of PDF? Portable Document Format. ओके, सो ये आ जाता है एग्जाम में कि PDF का फुल फॉर्म क्या है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. फॉर दिस आई हैव गिवन अ सेपरेट क्लास ऑल्सो जिसमें हमने बात किया था कि फर्स्ट ईमेल रे टॉमलिंसन ने भेजा था and we had a talk on the protocols which are used on email. IMAP अभी बात कर लेते हैं ईमेल के साथ साथ. IMAP और POP है जो कि हम लोगों का रिसीव करने के लिए हेल्प करता है. SMTP जो है जो कि मेल को सेंड करने के लिए हेल्प करता है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट IMAP it is internet messaging access protocol, internet message access protocol, we can say access protocol. And then POP is post office protocol, and protocol. और कभी कभी वर्जन्स भी मेंशन कर देते हैं, वर्जन 3 लाइक दैट. सेंड करने के लिए एक मेल को सोर्स से डेस्टिनेशन में भेजने के लिए वी आर हैविंग सिंपल mail transfer protocol. So this is your SMTP, simple mail transfer protocol. तो ये है पहले 6. तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए and I hope that you don't forget it. ठीक है, after writing it, it is your responsibility to keep on revising it. Okay, तो आगे बढ़ते हैं 7th में UPS. What is UPS? uninterrupted power supply. जो हमको uninterrupted power supply देता रहे. Is it not? UPS. That is the full form of UPS. Then when we come to ISP, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ISP क्या है, कौन सा ISP ले रखा है. तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि आपने एयरटेल ले रखा है, रिलायंस ले रखा है. So the one to whom we are paying a fee and then we are using the internet, तो वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हमको प्रोवाइड कर रखा है. So that is one. Now when we talk about GUI, that is graphical user interface. तो it's very easy. अभी लोग बात करते हैं कि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी फोन इतने आसानी से यूज कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो इंटरफेस इतना इजी है. सो द
क्रेडिट गोज टू दोज इंजीनियर्स, द डेवलपर्स, जो वो बना रहे इंटरफेस को इतना इजी दैट एनीवन, इवन अ लेमैन, you must have seen that a layman who is not much, मतलब इतना पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी है कि उनको भी सबको यूज करना आ जाता है. व्हाट डू यू से? बिकॉज ऑफ वेरी इजी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इतना अच्छा है कि इट बिकम्स वेरी इजी. यस. एंड CUI इज द कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. कैरेक्टर, जिसमें हम लोग कैरेक्टर के थ्रू इंटरफेस हो, इट बिकम्स अ डिफिकल्ट वन. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, हो गया. CPU तो सबको पता होगा, दैट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज द CPU. ओके. तो फिर एक, अगर मैंने बोला कि आप लोग कैरेक्टर बेस्ड ब्राउजर का नाम बताना, तो ये होता है LYNX. ये कैरेक्टर बेस्ड ब्राउजर था. ठीक है. जैसे आजकल हम यूज करते हैं ना, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी. सो ये कैरेक्टर बेस्ड ब्राउजर में लिंक्स आता है, लिनक्स नहीं. डोंट गेट कंफ्यूज. लिंक्स LYNX. और जो लिनक्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है. दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया. एंड देन वी टॉक अबाउट DVD. दैट इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी दिया होगा तो वी कैन टेक इट. ठीक है. तो ऑप्शन में अगर दिया है कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, तब तो हम वर्सटाइल डिस्क को क्लिक करेंगे. if by chance in the option versatile नहीं दिया है और digital video disc दिया है, so just click on it. Okay, so nowadays they call it DVD also. ये एक storage medium है. You know that compact disc, CD मतलब compact disc. तो ये CD, DVD ये storage medium है. तो CD की capacity कम है, DVD की high है. So this is about your CD, DVD, right? अब है हमारा, ये हमने LCD, हम बोलते हैं ना लिक्विड LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर. सो LCD इज द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. एंड LED इज द लाइट एमिटिंग डायोड. ओके. सो इसके बारे में, मॉनिटर्स के बारे में मैंने एक दिन बात किया था, लाइट एमिटिंग डायोड्स. ओके. सो गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ये सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है. इज इट फाइन? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या होता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है. जब हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो दो टाइप की होती है. डू यू रिमेम्बर? हमने बात किया था SRAM और DRAM. SRAM और DRAM. SRAM is the static random access memory. S मतलब static है और D मतलब डायनेमिक है. D मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है. जब हम रोम के बारे में बात करते हैं, रोम इज योर रीड ओनली मेमोरी. और रीड ओनली मेमोरी में भी हमने एक दिन, जब मैं इग्नू का पेपर डिस्कस कर रही थी, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था. इट वाज आस्क्ड अबाउट दिस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये क्या क्या टाइप के हैं? प्रोग्रामेबल. ये प्रोग्रामेबल रीड, रोम तो वही हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. एप्रोम, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. और एक है EEPROM. EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल. इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली. प्रोम तो वही है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. EEPROM मतलब इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो 20 तो हो गए हमारे. तो 20 हो गए हमारे. और जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यू माइट गेट दोज इन योर क्वेश्चन पेपर. फाइन. अब डोमेन नेम, DNS के बारे में भी हमने बात किया था. IP एड्रेस, जैसे मैंने एक डायरेक्टरी के बारे में बात किया था कि जिसमें जो भी हमारा एक एड्रेस है, इट इज कनेक्टेड टू इट्स नंबर बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम. ये कैरेक्टर बेस्ड नंबर सिस्टम है. डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर. ठीक है. डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्वर.
ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे चलें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। डू यू रिमेम्बर कि हम लोग बात करते हैं कि एक इमेज है, इमेज फाइल है, फोटो है, उसकी एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन मतलब जब हम राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आता है टाइप ऑफ फाइल, तो लिखा होता है जेपीईजी, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। सो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ योर जेपेक। जेपेक है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जेपेक मतलब कि एक फोटो है, एक इमेज फाइल है, दैट वी अंडरस्टैंड। डू यू नो और नॉट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओएमआर क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओसीआर क्या है? ऑप्टिकल, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। डू यू रिमेम्बर ऑप्टिकल का? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जब आता है कि हम लोगों को पता है इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कि कीबोर्ड है ना, हम लोग बात करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ओएमआर, ओसीआर, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओसीआर, ऑल दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। ओके, बारकोड रीडर। नाउ वी आर आरजीबी, हमेशा याद रखना कि आरजीबी कलर होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। इज इट फाइन? And then FTP stands for File Transfer Protocol. File Transport Protocol. SMTP तो अभी हमने किया कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड HTTPS, जब भी मैंने बोला कि जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, वेन एवर वी आर विजिटिंग अ न्यू वेबसाइट, सो वी हैव टू चेक कि ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, ये HTTPS में काम कर रहे हैं। S इज योर सिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड मतलब जो भी डेटा है हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो रहा है। अब इनक्रिप्टेड फॉर्म में मतलब कि जैसे मैंने भेजा हाई, एंड देन इफ द कम्युनिकेशन जब हो रहा है तो हाई अगर गया, तो अगर किसी ने उस मैसेज को रिट्रीव कर लिया तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये है। बट इन HTTPS डेटा इज सेंट इन एन इनक्रिप्टेड वे, सो दैट इफ इवन इफ समवन स्टील्स इट, उनको कुछ समझ नहीं आएगा कि व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मैसेज। तो दैट इज व्हाई इट इज सिक्योर। ठीक है। अब LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, metropolitan area network, and wide area network. For a smaller building, small building में connection के लिए local area network. Across cities we say metropolitan area network, metropolitan area network, तो ये है। और wide internet is the example of wide area network across countries, so wide area network. I hope it's clear to you. So ये 30 हो गए आपके abbreviations. I will come up with more series. So why did I explain, मतलब कि ये है कि हम लोगों को ध्यान भी रहना चाहिए कि DNS क्या है और IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। So the terminologies along with a brief explanation is a very important thing, so that हम लोग को ध्यान आ जाए कि ये किस लिए यूज होता था। जब मैंने SMTP सुना तो ऐसे ध्यान आ जाना चाहिए कि हाँ, जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में पढ़ा था तब मैंने SMTP पढ़ा था, तो इट माइट बी समवॉट रिलेटेड टू मेल। तो जब हम ऑप्शंस में देखेंगे तो हमको ध्यान आ जाएगा, इसीलिए explanation is very very important. So those who have not yet liked, shared and subscribed, make sure you are liking it, sharing it and subscribing to the channel. So have a great day and a happy weekend. Thank you everyone. Bye bye.